Okay. Chalo, Vikai Private Limited was incorporated on 1st August 2016. When it was incorporated? 1st August 2016. And the company agreed to take over the business of Mr. Jai and Vijay Company going concern effective from 1st April. तो ये वाला sum. What is the date of commencement? 1st April. Date सही दो. Date of commencement 1st April 2016. चलो. Date of incorporation 1st August 2016. चलो. Next. Year ending. Date of year ending. Okay. 31st March 2017. So here it will start from April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February and March. Okay. So this was the date of commencement. Here 1st April and date of incorporation was 1st August. So this period from 1st April to 1st August is pre-incorporation. Because the company was not incorporated, that period will be called which period? Pre-incorporation. So pre-incorporation period. Yes, sorry. Correct. Thank you, Shashank. Because 1st August नहीं है, 1st July तक है. So 31st July तक का 1st August को तो company incorporated हो गया. Okay. So before that period will be pre-incorporation. ठीक है. Thank you, Shashank. Pre-incorporation period. And the later period will be called which period? Okay, so from 1st August to March 31st will be called post-incorporation period. So 1, 2, 3, 4 months. और यहाँ पर कितने months है? 8 months. So that will give you how much total? 4:8. 4:8 means 1:2. चलो, done everyone? Okay. चलो. Next is sales ratio. First working note is over. Normally these ratios are needed, so we will find out in advance only sales ratio. About sales, the ratios are typical. See, what they have said, okay, the sentences. अभी सब लोग ध्यान से सुनना. Monthly sales for October 2016 to March 2017 is 150% of monthly sales for April 2016 to September 2016. अभी फिर से we are going to write down the month name. Okay, so I'm writing here April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February and March. Now assume that, let us assume, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मंथली सेल्स जो था पहले x था. assume करो पहले कितना था? x. See, I am reading the sentence once again. मुस्कान पे अटेंशन here, फ्लेविया पे अटेंशन हो here. फिर से मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ, सुनो यहाँ से. मंथली सेल्स for October to March. For October to March is 150% of monthly sales, is 150% of monthly sales from April to September. अक्टूबर से मार्च का जो सेल्स है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, गिव अटेंशन ओवर हियर. यस सैजीन, क्या बोला मैंने? अक्टूबर से लेकर मार्च तक का सेल्स जो है मंथली सेल्स, वो किसका 150% है? अप्रैल से अगस्त का. और सितंबर तक का क्या है? 150% है. सी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो मंथली सेल होने वाला है वो इसका 150% है. इस
किस पीरियड का 150% है? अप्रैल से सितंबर के मंथली सेल्स का 150% है। तो लेट अस अज्यूम दैट के इस पीरियड का बिगिनिंग पीरियड का सेल्स कितना है? एक्स। तो हर महीने में हम एक्स सेल्स कर रहे हैं, एक्स 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 और सितंबर, राइट? यस एवरीवन, 1x अज्यूम करो, 1x, x मीन्स 1x, राइट? ओके एवरीवन, चलो अभी कैल्सी में मुझे बताओ कि 1x का 150% कितना होता है? लेविया, 1x का 150% कितना होता है? 1 का 150% कितना होता है? नो, 1.5। 1x का 150% कितना? 1.5। 1 का 1.5 गुना, 150% मतलब कितना? 1.5 गुना। तो एक है तो एक का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 1.5। इज इट क्लियर एवरीवन? सो 1 का 150% इज 1.5। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर। इसने क्या बोला कि 150% हो गया, तो आई कैन राइट 1.5x। ये समझ रहे हो तुम लोग? ओके, सो 1.5x 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 1.5x। चलो डन एवरीवन, एनी डाउट हियर? समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? फिर से समझाऊं क्या? हाँ समझाती, चलो। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अप्रैल से लेके सितंबर, बराबर है, उसके इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड मंथली सेल्स जो है वो मंथली सेल्स, दूसरा जो पीरियड है अक्टूबर और मार्च में, वो 150% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 150। तो लेट अस अज्यूम, कुछ लोग 100 अज्यूम करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। 100 भी अज्यूम कर सकते हो, नो डाउट, दैट विल ऑल्सो गिव यू करेक्ट आंसर। आई विल डू बोथ वे, इफ यू वांट टू अज्यूम 100 दैट इज ऑल्सो फाइन। तो 100 100 100 100 100 100, यहाँ से 150 150 150 150 150 and this way also you can, so either you assume x or either you assume 100, both the way answer will come, don't worry, okay? अब is this clear? मैंने 1x क्यों लिखा और 1.5x क्यों लिखा और 100 क्यों लिखा और 150 क्यों लिखा? क्योंकि इस पीरियड का मंथली सेल्स से ये पीरियड का मंथली सेल्स 150x% है, 150% हो गया इसलिए। तो अगर मैंने जनवरी में, अगर मैं बोलती हूँ कि जनवरी का सेल्स जो था फरवरी का सेल्स उसका दुगना हो गया, अज्यूम, एक सेंटेंस दे रही हूँ आपको कि सेल्स ऑफ फरवरी मंथ इज 200% ऑफ जनवरी सेल्स। तो जनवरी का सेल्स 1 है, 1x है, 1x है। जनवरी का सेल्स कितना है? 1x। तो फरवरी का सेल्स कितना होगा? बराबर है, वही समझ में आया? अगर जनवरी का सेल्स 100 है तो फरवरी का सेल्स कितना होगा? 200। तो वही बोला गया है, इट इज सेड इन द क्वेश्चन कि सेल्स ऑफ अक्टूबर टू मार्च इज 150% ऑफ मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल टू सितंबर। सो इफ वी अज्यूम इट इज 1x तो वो क्या होगा? 1.5x। इफ वी अज्यूम इट इज 100 देन वो क्या होगा? 150। both way answer will come because we are going to find out ultimately what ratio। तो अब इसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कौन सा था? which period? this is pre period, pre, this is post, am I right? चलो can you total this? 1 2 3 4, 4x और यहाँ पे 2 11x, okay, so 11x, so the ratio will be x get cancelled, x cancel हो जाएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:11। is this clear? 4:11, x get cancelled, 4x and 11x, तो x कैंसिल हो गया तो क्या आएगा? 4:11। x y समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? यस और नो? अब 100 वाइज समझाऊं? क्या नहीं समझा? 100 वाइज ही समझा देती हूँ। 100 वाइज देखो कितना होगा ये सेल्स, प्री और ये क्या हो जाएगा? पोस्ट। तो ये कितना होगा? 400 और ये कितना होगा? 1100। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4:11। 0 0 गेट कैंसल्ड,
रेशियो क्या हो जाएगा 4:11. इज इट क्लियर? यस और नो? डू यू नीड फर्दर इलाबोरेशन ऑन दिस? डन ना? दोनों वैसे तो आइदर यू अज्यूम x और आइदर यू अज्यूम 100, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद. आपको 100 करना तो 100 अज्यूम करो, x अज्यूम करना है तो x करो. सो दिस इज योर सेल्स रेशियो. डन एवरीवन? चलो अब we are going to make the forward and let us begin with the question. Please try to draw along with me. Yes class? Yes. चलो दे दो, ये रूलर दे दो. हाँ वो बात, रेंट का वर्किंग नोट है, फिर इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट है, वो जैसे जैसे आएगा that we will do. But we know in every question most of the time time ratio and sales ratio is compulsory most of the time. So वो तो हम find out करके ही रख देने का. बाद में जैसे जैसे question में the items will come, at that time we will make the working note. Is it clear? Okay. चलो. So let us start with this statement of प्रॉफिट और लॉस. कौन सा बुक का नाम क्या है? इन द बुक्स ऑफ. कंपनी का नाम क्या है? विका है ना? विके. स्पेलिंग बोलो. VEEKAY. विके लिमिटेड, राइट? चलो चलिए, इनकम से हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद? ग्रॉस प्रॉफिट. सो ऑलवेज स्टार्ट विद इनकम एंड इन दैट यू विल स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट. सो ग्रॉस प्रॉफिट में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 1,20,000 का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है. क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 and this gross profit. Yes, students, this gross profit will be divided in which ratio? Okay, it is already been taught to you that gross profit is divided in the which ratio? Sales ratio. So let us start with that division. Sales ratio. Can you give me the amount? Sales. How many? 4:11, right? Chalo, what is the amount? 32,000 and 88,000. Everyone has got this answer? आता है ना करने रेशियो? आता है ना? 4:11 मतलब 4/15, राइट? 11 नहीं, 4:11 मतलब 4/15. एंड सेकंड का अमाउंट क्या आएगा? 11/15. दो अमाउंट मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा. अभी कौन बोला 11? 4/11 कौन बोल रहा था? 4/15. 4/11. 4:11 मतलब इसका प्लस कर देगा 4/15 and 11/15. Whichever amount you want to divide, first multiply with this, so you will get first amount. Second ratio you will divide, multiply with 11, divide by 15, will get the amount. ये तो फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने. रेशियो भी सिखाया था ना फर्स्ट लेक्चर में. वो भी कैसे बेंच जाके सिखाया था. अब मत पूछो, अभी गलती मत करो, ठीक है? ये तो बेसिक है. चलो, सो ग्रॉस प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट की अपोजिट लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. पे अटेंशन ओवर हियर. ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया सब लोगों ने? ओके. नाउ नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर इनकम साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई एम राइटिंग टोटल, व्हाट इज द अमाउंट 20,000। नाउ यहां पे ध्यान दीजिए 20,000 का प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट पर, बट इन्वेस्टमेंट कब बेच दिया? इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ऑन 1 नवंबर 2016। कब सेल हुआ? 1 नवंबर 2016। विच पीरियड इट इज? तो कहां पे जाना चाहिए? ये प्रॉफिट कब हुआ था? पोस्ट में हुआ था। बेचा कब? इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड, यहां पे मैं लिखती हूं, यहां पे सोल्ड ऑन विच डेट? 1 नवंबर। कौन से पीरियड में सोल्ड हुआ? पोस्ट पीरियड में सोल्ड हुआ ना, तो उसका फायदा भी कहां पे जाना चाहिए? पोस्ट में। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि बिकॉज वी हैव सोल्ड दिस इन्वेस्टमेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर and November month is in a post incorporation period, so profit also will go in which period? Post. So यहाँ पे लिखेंगे specific and directly हम कहाँ पे लिखेंगे इसको? Post. Is it clear everyone? Okay? चलो next, कोई इनकम दिया है क्रेडिट साइड? Any more income is given credit side of the profit and loss account? No. So we are just going to total it. अब इसका टोटल करो। टोटल करते हैं इसका टोटल। हाउ मच टोटल विल कम? 1,40,000, यहाँ पे 32,000 एंड यहाँ पे 8,000। ठीक है, डन एवरीवन। चलो नेक्स्ट, दिस विल बी योर टोटल इनकम। ए लिख देते हैं इसको। नाउ लेस, क्या करते हैं हम लोग? क्या लेस करें से इससे? व्हाट वी आर गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम योर एक्सपेंसेस। सो वन बाय वन विल टेक द एक्सपेंसेस एंड बाइफर्केशन ऑफ प्री एंड पोस्ट विल बी डन। चलो फर्स्ट सैलरीज। फर्स्ट क्या है? सैलरीज। चलो सैलरीज, यस्टरडे ओनली आई डिस्कस, सैलरीज आर ऑलवेज मंथली बेसिस होता है, टाइमली बेसिस होता है, इसीलिए उसको कौन से रेशियो में देना चाहिए? टाइम रेशियो। सो स्ट्रेट अवे लिख लूं, चलेगा? करोगे ना डिवीजन? चलो, सो द अमाउंट इज 30,000 टोटल अमाउंट विच विल बी डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ टाइम। टाइम रेशियो इज 1:2। So get me the division of time ratio, 10,000 and 20,000. यहाँ पे तो इजी है, जाओ ना आगे फटाफट, ये सैलरीज डिवाइड किया समझ में आ जाएगा ना। चलो नेक्स्ट, खत्म करके फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है। सेकंड क्या है? रेंट। रेंट में देयर विल बी समथिंग समथिंग सेड इन द क्वेश्चन। इज देयर समथिंग समथिंग सेड इन द क्वेश्चन? फाइंड आउट। रेंट में कुछ बोला है? मैंने देखा है कुछ बोला गया है, जरा ध्यान से देखो। रेंट में बोला गया है कुछ? क्या बोला गया है? चलो यहाँ पे वर्किंग नोट 3, रेंट। चलो उन्होंने क्या बोला है? रेंट के बारे में बोला गया है, आई एम रीडिंग द इंफॉर्मेशन। रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 500 पर मंथ। यस बेटा, डाउट है? ये ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? यहाँ ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, मतलब चैप्टर ही इजी है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर इजी है। ओके, रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 500 पर मंथ टू 1,000 पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016। ओके, 1 अक्टूबर 2016 से रेंट क्या हो गया? 500 रुपया बढ़ गया। तो वी विल राइट डाउन द मंथ और फिर उसका प्री और पोस्ट में हम क्या करेंगे? डिवीजन। सो आई एम राइटिंग हियर द मंथ। चलो बोलो कौन सा आएगा? अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। वेरी गुड, बस हो गया। ओके, अब कब से डबल हो गया वो? अक्टूबर से। तो पहले कितना था? 500 था। So I'm writing here 500, 500, 500, 500, 500. एक सेकंड, ये अक्टूबर से कितना हो गया? 1000. So अक्टूबर से 1000, 1000. 1 के लिख सकते हो आप लोग, ओके? 1000 and 1000 and 1000. ओके? चलो अभी प्री वाला पीरियड, फ्लेविया, प्री वाला पीरियड कौन सा है? प्री पीरियड कौन सा है? अप्रैल से जुलाई, प्री पीरियड। और अगस्त से मार्च, कौन सा पीरियड? पोस्ट। चलो, कैन यू गेट मी द टोटल? 2000 और 7000। ये सिर्फ प्लस किया मैंने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डिवीजन कैसे होगा? स्पेसिफिक। इसमें डाउट है आपको? फ्लेविया समझा? सैजिन पीछे, स्टीव, मैक्सन के बाजू में उजैर, श्रीकांत, सिर्फ इसमें रैंड बदला। सनायका, हाँ भाई सनायका, हाँ ये रही सनायका, क्लियर? पीछे अपनी नेलिया नहीं आई ना आज। क्रिजल, क्रिजल, क्रिजल ना, क्रिजल के बाजू में, एक सेकंड मैं याद करूंगी। क्रिजल के बाजू में ऋतुजा। वेरी गुड, देखो याद आ गया ना? ऋतुजा, ऋतुजा ला लो, ये आना चाहिए। ऋतुजा है ना? परफेक्ट, वो नाम याद होता है। निशा, और ये अपनी हर्षदा। चलो डन। चलो फॉरगेट अबाउट दैट, नाउ कम हियर। ये खत्म करते प्रॉब्लम, नहीं तो बेल बज जाएगी, लेक्चर खत्म हो जाएगा। बेल बजेगी तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम आधा रह जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड होगा। वो मैं बिल्कुल भी चाहती नहीं हूँ। लो प्लीज मुझे फटाफट करने दीजिए। ओके, 2000 और 7000, क्या इसमें कुछ नहीं समझा? बताओ मुझे, डरो मत। समझा? ओके चलो, 2000 एंड यहाँ पे